الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ما تبين إيمانكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 12 رمضان المبارک سن 1440 ہجری ہے. آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس خصوصی افطار لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، اس وقت جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اس کا شرف حاصل کیا حافظ عاصم قادری نے، اور جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھی گئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے حسد اور بغض کی بنا پر آپ کو بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. آپ انہیں معاف کریں اور چھوڑ دیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جو اہل کتاب تھے وہ محض حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حسد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس پر کیا گفتگو ہوتی ہے۔ چلتے ہیں ریما جی کی جانب۔ جی ریما۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج 18 مئی سن 2019 بروز ہفتہ، رمضان المبارک کی 12 تاریخ 1440 ہجری ہے۔ ماہ مبارک میں ہماری توبہ کے لیے مغفرت کا اشرہ جاری ہے۔ توبہ کا خیال ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے وہ بدبخت ہے، کیونکہ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگتے ہیں تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حاسد جب تک حسد میں مبتلا ہے اسے خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ وہ جو جلتا ہے آگ کی مانند، ذرا دیکھو کہیں حاسد تو نہیں۔ سنا ہے حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ خود ہی حاسد کی ذہنی اور قلبی پستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسروں کی ترقی، کامیابی، علم و فراست کو دیکھ کر ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہنے کی بجائے آنکھوں سے شعلے برسیں، تن بدن میں آگ لگ جائے اور بس نہ چلے کہ کس طرح سامنے والے سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ ایسے جذبات رکھنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ اس کو معلوم ہو کیسے کہ عبادت کیا ہے، خوشی کہتے ہیں کسے اور محبت کیا ہے۔ وہ جو جلتا ہو خوشی دیکھ کر زمانے کی، تم ہی کہو اسے تیلی کی ضرورت کیا ہے۔ منحرف رہتا ہو تقسیم خدا پر ہر دم، وہ کیسے جان سکے رب کی اجازت کیا ہے۔ قرار دل کا کیسے پائے جو نہ جانتا ہو مروت کسے کہتے ہیں اور طہارت کیا ہے۔ بران رحمت میں آج ذکر ہوگا اس مذموم کیفیت کا جسے حسد کہتے ہیں، جو اگر پیدا ہو جائے تو بندہ خدا اور انسان دونوں سے دور ہو جاتا ہے۔ علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس آفریت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے حسد۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ہماری سوسائٹی میں بالعموم ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جو پینلسٹ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب آغا نادر رضوی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد سے متعلق میرے خیال میں پہلے بنیادی سوال وہاں سے اٹھاتے ہیں، پھر تاکہ تفصیل ذرا آگے آئے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ روزمرہ کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت خاص ہے، اور جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلا حسد ابلیس نے کیا تھا
حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کی تخلیق پر، ان کے اشرف المخلوقات ہونے پر اور ان کا اللہ کا نائب مقرر ہونے پر۔ تو میں علماء کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو لوگ حسد کرتے ہیں تو کیا وہ ابلیس کی تلقید کرتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی آپ نے جس طرح اشارہ کیا یہ یوں ہی ہے، جو بھی یہ حسد کرے گا، جو حسد کا ایک تو بیماری یہ روحانی بیماری ہے، یہ کوئی وہ بیماری نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے آپ نے دوا لی اور آپ ٹھیک ہو گئے، یہ وہ روحانی بیماری ہے۔ انہی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے پروردگار عالمین نے 1,24,000 انبیاء کو نازل کیا کہ تم میں یہ حسد، جلن، بغض، تم میں یہ منافقت، تم میں یہ کینہ، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کے لیے میں نے ان کو، یہ روحانی بیماریوں کے طبیب ہیں یہ جن کو بھیجا میں نے۔ ائمہ معصومین، 14 معصومین علیہ السلام اسی لیے تشریف لا۔ آج بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جو غیبت میں ہیں وہ انہی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ابلیس ان بیماریوں کی طرف لانے والا ہے وہاں ہمارے وقت کا امام ان بیماریوں سے بچانے کے لیے موجود ہے۔ پروردگار نے کسی بھی دور کو جو ہے وہ ہادی سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ حسد یہ شروع کیا، جیسا آپ نے بتایا، ابلیس نے شروع کیا، اور آج بھی ابلیس اور ابلیس کے کارندے انہی کاموں کی طرف مشغول ہیں۔ سورہ فلق میں پروردگار عالمین نے جو ہے واضح طور پہ اس طرف اشارہ کیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پروردگار محفوظ رکھے ان حاسدوں سے۔ حسد ہے کیا؟ حسد یہ بیماری ہے کہ اس میں دوسرے کا نقصان کم ہے اور اپنا نقصان زیادہ ہے۔ انسان خود اپنی لگائی ہوئی، عرفہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جلتے ہیں کیونکہ محنت سے بچتے ہیں، کیونکہ ان کے گرد جس خاندان میں جس چیز میں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی رضا پہ وہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جس حیثیت میں پیدا کیا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں تو میں حسد کروں گا، اور پھر حسد سے جب وہ بڑھ کے پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، پھر وہ فاسد بن جاتا ہے، پھر وہ منافق بن جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری کی ابتدا ہے یہ حسد جو ہے۔ اور اس چیز کی طرف میں معذرت کے ساتھ اشارہ ہوا ہے، زیادہ تر خواتین کی طرف ہوا ہے اس سورہ فلق کے اندر، معذرت کے ساتھ جو اشارہ ہوا ہے، یہ حاسد مرد عورت دونوں موجود ہیں، لیکن خواتین میں اس چیز کی جو کنڈیشن ہے وہ کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مومن خواتین، پاک مسلمان خواتین میں یہ چیز کم ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں یا جو کافر ہیں ان میں یہ حسد کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے مسلسل علاج ہے، مسلسل علاج یہ کہ تم اپنے پروردگار عالمین کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو اور اللہ سے پناہ مانگتے رہو، جو کچھ تمہیں دیا اس پہ اکتفا کرو۔ ٹھیک ہے جی جی مفتی صاحب۔ جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب اور محترمہ ریبہ بی بی، بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا جس بیماری کی طرف سوال اٹھا ہے۔ یہ بیماری بڑی پرانی ہے، سینکڑوں سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا جو حسد ہوا ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے اور دوسرا حسد زمین پر ہوا ہے۔ آسمانوں پر ابلیس نے حسد کیا، وہ اس وجہ سے کہ شان و شوکت دی جا رہی ہے، فرشتوں میں مشہور و معروف میں ہوں، اور نعمتیں ساری اٹھا کے آدم علیہ السلام کو دی جا رہی ہیں، مسجود ملائکہ اسی کو بنایا جا رہا ہے، ظہر سے سجدہ ہوا عصر تک 500 سال کا سجدہ تعظیمی اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے حسد آسمانوں سے شروع ہوا، اور قابیل و حابیل کا جو حسد ہے وہ زمین سے ہے، اولاد آدم کا۔ بیماری بڑی پرانی ہے، اس کا علاج جیسے میرے محترم علامہ صاحب فرما رہے تھے، انبیاء کرام جو تشریف لاتے رہے وہ انہی بیماریوں کے علاج کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، وہ امت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف کے اندر، الحسد یاکل الحسنات کما تاکلہ النار الحطب، فرمایا کہ حسد نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ یعنی جتنا کوئی نیکیاں کرتا جائے، اب حاسد
حسد کرتا ہے کس کے لیے؟ جس کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. اب وہ ایک دن کے لیے نہیں جلتا، وہ ہمیشہ حاسد جلتا رہتا ہے، اس میں جلتا رہتا ہے اور پورا غم زدہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اس سے دشمنی کر بیٹھتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں نعمتیں دے رہا ہے. اور قانون قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھا ہے اس کو وہ نعمتیں ملنی ہیں. اب حاسد کو اعتراض ہے اللہ کی تقسیم پر کہ اللہ نے اس کو کیوں زیادہ دیا. اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد گناہ کبیرہ ہے. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار حسد کرتے ہیں اہل ایمان سے کہ ہم ایمان والوں کا کسی طریقے سے جناب ایمان چھین لیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے، نبوت کی نعمت نبیوں کو اللہ نے دی ہے، شان و شوکت اللہ نے دی ہے. اسی لیے اس سے حسد کرنا، جلنا، روزمرہ اپنے آپ کو غم میں ڈال لینا، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور پرانی بیماری ہے. جیسے میرے دوست علامہ صاحب فرما رہے تھے صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ اندر کی روحانی بیماری ہے. تو روحانی بیماری کے لیے روحانی معالج کا، روحانی نسخے کا ہونا ضروری ہے، اسی سے یہ بیماری دور ہوگی. میں ایک اور سوال پوچھوں پھر آپ بہت معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ حسد، نظر بد اور رشک، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کسی کے مال پہ، کسی کی جاؤ حشم پہ حسد کرنا، یعنی کہ اللہ کی جو تقدیر ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی حسد پہ راضی نہ ہونا. نظر کے لیے واضح طور پہ آیا کہ نظر تمہاری بد نظر مت ڈالو بلکہ اللہ کی اطاعت کی نظر ڈالو. اپنے قریب جو بھی چیز تمہیں پسند ہے، بد نظر سے یہ تمام جو چاروں قل آئے ہیں یہ انہی چیزوں پہ آئے ہیں کہ تمہاری نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ پہاڑوں کو توڑ دیتی ہے. بد نظر یعنی کہ اپنے اندر دوسرے کی چیز کی لالچ رکھتے ہوئے نظر کرنا. ایک زبان اگر آپ کے منہ میں ہے تو دوسری زبان آپ کی آنکھ ہے، لیکن جو یہ آنکھ بولتی ہے یہ وہ زبان وہ چیز نہیں بول سکتی. عرفا کہتے ہیں کہ اپنی نظر کو اللہ کی اطاعت میں رکھو. دیکھیے آپ کے جسم کا ہر جتنا بھی اعضاء ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے. سب سے زیادہ شکر گزار آپ کے تمام اعضاء ہیں، سب سے کم جو شکر گزار ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، جو روایتوں میں ملتا ہے، یہ تمہاری نظر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے کم شکر ادا کرتی ہے. نظر، حسد، بغض، جلن، یہ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں آپ سے میں کہ دو لاشیں گھومتی ہیں. ایک لاش جناب انسان کی ہوتی ہے جو جسم مرتا ہے اس کو کندھے پہ اٹھا کے دفن کر دیا جاتا ہے. دوسری یہ تمہاری جو روح جو تمہاری مردہ ہو جاتی ہے نا، حسد، جلن، بغض اور کینہ سے تمہاری یہ روح مردہ ہو گئی. اب تم چلتی پھرتی لاش ہو، زندہ انسان نہیں ہو تم، کیونکہ تمہارا جسم زندہ ہے، تمہاری روح مر چکی ہے. ان تمام چیزوں سے ہی بچانے کے لیے تمام شریعت انبیاء، خصوصاً جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس میں حکم ہی دیا گیا کہ دیکھو اطاعت اللہ کرنا، اطاعت رسول. اطاعت اللہ تو تم کیا کر سکو گے تم، اللہ نے کہا اطاعت رسول کرنا. اطاعت رسول وہی ہے جو میری اطاعت ہے. اطاعت رسول کے بعد اطاعت اولی الامر کرنا، یعنی کہ ائمہ معصومین کی اطاعت کرنا. ان کی اطاعت میں تم اگر آؤ گے صبر اور شکر کے ساتھ تو تم ان تمام روحانی بیماریوں سے بچ جاؤ گے. یہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب آپ سے یہ جانیں گے کہ پھر رشک کیا ہے. جیسے کہ ریما نے بتایا تھا، کویشچن انہوں نے ریز کیا تھا، تو رشک کے بارے میں ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم بات کر رہے تھے اور ریما جی نے ایک کویشچن بڑا امپورٹنٹ ریز کیا تھا کہ حسد میں، رشک میں اور نظر بد میں کیا فرق ہے. حسد اور نظر بد کے بارے میں آغا صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا. مفتی صاحب یہ رشک کیا چیز ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. رشک ایک اطاعت کا نام ہے. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے حقیقت میں اس میں رشک کرنا، دیکھنا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں ترمذی شریف کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی تعریف فرما رہے تھے کہ خدیجہ کے بڑے احسانات ہیں اسلام پر، مجھ پر. اس میں یہ خوبیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھی سن رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی بوڑھی عورت کا اتنا ذکر فرماتے اللہ نے آپ کو اور بیویاں عطا فرمائی ہیں، کاش. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا عائشہ
ऐसा क्यों कहती हो? अर्ज करती है, आका मैं हसद नहीं कर रही, मैं हजरत खतीजा पर रश्क कर रही हूं कि काश उनकी जगह पर मैं होती और मैं मर जाती, आपके हाथों दफन होती। ये सारी नेमतें खतीजा को मिली हैं, अल्लाह ने दी हैं, तो उनके सदके मुझे। अगर इस तरह कहा जाए कि डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, ये हसद नहीं है, ये रश्क है। या अल्लाह मुझे डॉक्टर जुबैर साहब के सदके बख्श दे, मैं उनकी नेकियों को देख के दीवाना होता हूं, बहुत अच्छे अमाल हैं, तो ये हसद नहीं होगा, ये रश्क होगा। हदीस मुस्लिम की जिल्द 2 और किताबुल अदब के अंदर एक हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन अमर रिवायत करते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे, सरकार ने फरमाया एक साहब आने वाले हैं, ये खजूरों के जंगल से निकलेंगे, जो उसकी जियारत करेगा वो जन्नती मर्द की जियारत कर लेगा। सारे सहाबा देखने लगे, वो साहब आए, उनके हाथ में जूते हैं वो, और दाढ़ी से पानी वुजू का टपक रहा है, और वो बैठे देखने लगे। दूसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया आज साहब आएंगे जिनको शौक है जन्नती की जियारत करने का। फिर देखा दूसरे दिन भी वही साहब हैं, यक के बाद दीगर 3 दिन तक वो आते रहे। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला ने फरमाते मुझे शौक हुआ कि मैं इनके अमाल देखूं कि ये करते क्या हैं। फरमाते मैं उनके पीछे हो लिया, उनके घर में गया, देखा कि रात शाम हो गई। मैंने कहा मुझे आपका मेहमान होना है। कहा बिस्मिल्लाह आप ठहरो। ठहर गया, रात को सोया, मैं देखता रहा, सोया नहीं, वैसे सोने वाला मुंह बना लिया, आदत बना ली, देखता रहा कि रात को ये इबादत किस तरह करते हैं, इनके अमाल जिक्र अज़कार क्या है। फरमाते देखते रहे, वो मामूल की नींद सो गए। मैंने कहा हो सकता है मेरी वजह से आज रात ना जागे हूं, इबादत न की हो। दूसरी रात आ गई, उसी तरह सोते रहे। तीसरी रात आ गए, जागते रहे, करवट लेते, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, फजर की नमाज पढ़ी। मैंने कहा मुझे जाना है, तो जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूं आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें जन्नती कह दिया है कि तुम जन्नती हो, अल्लाह ने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी है। वो कहने लगा कि मैं तो कोई ऐसा अमल नहीं करता, हुजूर ने जो फरमाया सच फरमाया, मैं सिर्फ किसी मोमिन बंदे से हसद नहीं करता, मैं जिसको देखता हूं रश्क करता हूं, हसद नहीं करता। अल्लाह तबीयत में मिलान में रश्क अता फरमाए। खुदा ताला हसद की बीमारी से हम सबको बचाए। हसद का जिक्र सिर्फ कुरान में एक जगह नहीं, सूरह यूसुफ के अंदर है, सूरह आले इमरान के अंदर जिक्र मौजूद है, और सूरह हामीम सजदा के अंदर मौजूद है। हसद बहुत बड़ी गंदी बीमारी है। सूफिया फरमाते हैं कि हसद नाम है नफ्स अम्मारा का, और ये हमला करता है दिल के ऊपर, यानी ईमान को जायल करता है। जो नेमतों को जायल करने का इरादा रखता हो वही हसद होता है। गोया ये कि हसद तो एक मनफी रवैया है, और जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझा वो ये कि रश्क जो है वो ये कि किसी की नेमत अगर हो तो अल्लाह को ये दरखास्त की जाए कि या अल्लाह इस जैसी नेमतें मुझे भी अता फरमा। ये रश्क है। और रश्क को अगर इसमें ले लेंगे कि जनाब मैंने किसी को जाओ वशम देखा, किसी को अच्छा देखा, तो मेरी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि परवरदिगार मुझे भी तौफीक दे, मैं जैसा ये रश्क आगे बढ़ के अगर आप वो नहीं कर सके, खुदा ना खास्ता तो वो हसद में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने आप को महफूज रखना है, कोशिश करके। आपकी जो डेफिनेशन है उससे मुझे जहन में एकदम से आया, और मैं नाजरीन आपको शेयर करता चलूं कि कुरान मजीद की जब इब्तिदा करते हैं, बिल्कुल पहली सूरह फातिहा, अल्लाह ताला ने उसमें हमें तालीम दी है रश्क करने के लिए। अल्लाह ताला यानी हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। किसका रास्ता? अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। ये रश्क की कैफियत है, यानी हम अल्लाह को बताते हैं कि तेरे नेक बंदे जो थे जिन पर तूने इनाम किया, वैसा ही सीधा रास्ता हमें भी दिखा दे। ये इदराक इसी चीज का नाम है। जब हम बातें करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इदराक को खोल देता है, बिल्कुल सही, वो नेमतें आना शुरू हो जाती हैं, एक से एक दलील वाज़े हो जाती है कुरान पाक की कि अनअमता अलैहिम, उन्हीं का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। ये तो इनाम और यही रश्क है। वही अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। बिल्कुल सही, वो गिरोह भी बता दिया हमें। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी कि दौलत के बलबूते पर मजलूमों पर जुल्म करने वाला जो मालदार है उसके जवाल की ख्वाहिश करना, क्या ये भी हसद में शुमार होगा? ये अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में दुआ है इंसानों के तहफ्फुज के लिए, उस जालिम से अपने आप को बचाने के लिए। हसद में नहीं आएगा ये, ना ये जुल्म में आएगा, बल्कि ये तो हर मोमिन मुसलमान मर्द औरत पे वाजिब है कि परवरदिगार की, अगर तुम 3 इस्तिताअत हैं, अगर तुम हाथ
तुम्हें जुल्म से वो ताकतवर है, जाहिर सी बात है तुम्हें दुख पहुंचा है। तो तीसरी सबसे बड़ा हथियार परवरदिगार ने कहा मेरी ये दुआ है, हसद नहीं है ये तो पढ़ के दुनिया को बचाने के लिए हम एक जालिम से निजात उसके शर से बचाना चाह रहे हैं, उसके शर से बचना। और इसका बकायदा हुक्म शरीयत में दिया गया कि परवरदिगार अगर ये 3 काम में से ये एक काम तुम कर सकते हो तो तुम पे ये वाजिब भी हो जाता है बाज़ वक्त आकर कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। मुझे याद आ रहा है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने उन सरदारों से अपनी कौम के उन सरदारों के शर से बचाने के लिए वो दुआ की थी, मिनल काफिरीन दय्यारा, वो दुआ की थी, काफिर भी ना रहे जो अल्लाह के नाफरमान, नबूवत के नाफरमान है, अल्लाह की जमीन पर वो न रहे। परवरदिगार आलमीन बकायदा हुक्म दे रहा, मूसा दुआ करो इस फिरौन के गर्क होने के लिए। कितने ही अंबिया ने जो दुआ की है परवरदिगार इस कौम आद से, कौम समूद से और ये फिरौन से, नमरूद से, शद्दाद से, इनसे ये कौम को इन मजलूम लोगों को जान छुड़ा, इनको बचा। ठीक है। अच्छा, बड़ा एक सादा सा सवाल है कि एक आप के जानने वाले हैं या आप मिलते हैं जिनसे और आपको पता है कि ये मुझसे हसद करता है और इस्लाम में ही है कि आप किसी के साथ कतई ताल्लुक ना करें। अब जब आपको पता चल गया कि ये शख्स हासिद है, ये मेरी किसी बात से खुश नहीं होता, उसकी शक्ल से नजर आता है, उसकी आंखों से नजर आता है, फिर क्या ऐसे इंसान से मिलना जुलना रखना चाहिए या इज्तनाब करना चाहिए? देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पे इस पे रिवायत मौजूद है, आपने कहा कि तुम्हें कतई ताल्लुक नहीं करना, तुम अपनी नेकी से बाज ना आओ अगर वो अपनी बदी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन उससे मिलना नहीं है। अगर वो हसद करने वाला तो फिर एहतियात करो मिलने में, एहतियात करो, एहतियात करेंगे आप। मुझे इजाजत दें। जी जी जी। मसनद इमाम अहमद में एक हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे अपने भाइयों से कतई ताल्लुक न करो, उनसे मुंह ना फेरो, उनसे पीठे ना फेरो, उनसे अच्छे ताल्लुक रखो, हसद को खत्म करो, उनको समझाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें भी देगा, तुम्हें भी देगा। अगर ये गुमान है कि ये हसद की बीमारी इसके अंदर है, कोशिश करो कि उसकी बीमारी को निकालो, ज़ैल करो उनकी बीमारी को, उनके करीब जाओ, उन्हें समझाओ अगर उसमें है। वैसे बदगुमानी करना ये भी हराम है, हसद की जो बीमारी है ये भी हराम है। लिहाजा ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर हम कतई ताल्लुक नहीं कर सकते, इस्लाम के अंदर कतई ताल्लुक हराम है। मैं इसी बात से फिर आगे पूछना क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि हम लोग इतनी अक्ल नहीं रखते, इसलिए चाहते हैं कि हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाए। जैसे कि इन्होंने कहा कतई ताल्लुक हराम है, अब उस हासिद ने यहाँ तक कोशिश की कि आपकी जान लेने के दर पर आ गया, तो फिर भी आप उसको समझा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि उससे हमेशा एहसन रवैया रखा, इखलाक से बात की, मोहब्बत से बात की, मगर वो ज़ुबान से, नज़रों से, हर अंदाज से अपने हसद का इजहार करता है, तो फिर उससे मिलना। देखिए बीबी, आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बड़े हैं, उनको ले बिठाए, क्योंकि आपका उससे खूनी रिश्ता है या करीबी रिश्ता है। खूनी नहीं, अगर खूनी ना नहीं हो है तो चले, नाता है, आपका रिश्ता नहीं है, नाता है, दो रिश्ते। लेकिन मुसलमान वाला एक रिश्ता है, मजबूरी है कि आप खानदान में उससे मिलना है, मजबूरी है, आना है, उसने मिलना है आपसे। लेकिन आपका फर्ज क्या है? आपने अपनी हद तक कोशिश की, बड़ों को बिठाया, समझाने की कोशिश करी, उसकी तमाम गलतियां रखी सामने, खानदान सामने रखी, फिर भी बाज अगर ना आए वो अपनी हसद से, तो फिर उससे एहतियात करो मिलने में, एहतियात कीजिए मिलने में। जहां मिल जाए सलाम दुआ से नहीं जाओ। आगा साहब, उसकी कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई उसकी तकरीब है, वहां जाओ, शिरकत करो, ताल्लुकात अपने महदूद कर दो। अलावा से सलाम के जवाब में अगर वो पत्थर मार दे तो फिर वो मानने दो, आपका सलाम जाया नहीं होगा। देखिए बात हो रही है हसद की। रीमा बीबी का जो बड़ा सादा सवाल था, वो सादा सवाल बड़ा अहम बन गया है। हासिद जब हसद करता है वो पत्थर मारता है, पत्थर मारता है तो उसकी अपनी एक आंख पे वापस आके लगता है, निकल जाती है, फिर उसको और गुस्सा आता है, फिर वो पत्थर मारता है। ये हदीस में मिसालें दी गई है। फिर दूसरी आंख निकल जाती है, फिर वो हसद करता है, फिर उसका पूरा सर जख्मी हो जाता है। पूरी जिंदगी हासिद अपने आप को गम में मुब्तला कर देता है। बात हो रही है अगर वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है, मेरे ईमान का दुश्मन बन गया है, फिर तो उसे कतई ताल्लुक जायज है, फिर तो उसे दूर रहना जायज है। बात जान की और ईमान की आ गई है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लें। मुफ्ती साहब, आपकी गुफ्तगू जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद कुछ मजीद सवालात के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। वो
महसूद उसी तरह रहेगा, क्योंकि ये नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उसने जाती तौर पे नहीं ली। ये फैसले कुदरत में हो चुके हैं, कानून कुदरत में हो चुके हैं, तकदीर इलाही में वो फैसले आ चुके हैं कि इसको इतना रिस्क दिया जाएगा, इतना रिस्क दिया जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब आखिरी बात, उस महसूद के लिए ये है कि तुम अल्लाह को कर्ज हसना दो। वो कर्ज हसना यही है कि उन लोगों की तो मदद करो जिनके पास नहीं है, जिनको अल्लाह ने दे दिया है वो अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करें। ठीक है, मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। ये घरों में हम रहते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ लोग काम करने वाले होते हैं, बच्चे इधर उधर उनके बच्चे भी होते हैं। मैंने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है मैंने, मुझे नहीं पता, आप इसकी तस्दीक कीजिएगा कि अगर तुम खाने की कोई चीज ला रहे हो, कोई फ्रूट ला रहे हो, कोई फल ला रहे हो, अगर तुम उन्हें दे नहीं सकते तो कम से कम छुपा कर ले आओ ताकि वो ना देखें, ताकि उनका दिल ना दुखे। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ महलों में ना वो टेक अवे पे पिज्जा मंगवाया जाता है, कभी मैकडोनल्ड मंगवाया जाता है। अब वो पिज्जा बॉय लेकर आता है, वो चौकीदार भी उसे देख रहा है, वो दूसरे देख रहे हैं। इसको जरा इस रवैये पे बात कन्जुल आमाल में जो आप इशारा करें, सवाल आगा देंगे, ये बात कन्जुल आमाल की है, हदीस की किताब है, मैं जरा आगा साहब जवाब देंगे। मैं ये अर्ज करूं, देखें, इसराफ या दिखावा, ये दो चीजों को कभी पसंद नहीं किया गया। सलाम ने इसराफ और दिखावा, छुपा के, अपनी तीन चीजों को छुपा के रखो, अपनी औरत को, अपने पैसे को, अपने खाने को। इनका खास तौर पे हुक्म दिया है कि इनको ढांक के रखो, छुपा के रखो। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पड़ोस में कुछ पका भी है कि नहीं, और तुम पड़ोसी कैसे हो कि तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम्हारे पड़ोस में कुछ पका है कि नहीं। वो बेचारा हसद में मुब्तला होगा मेरी वजह से। दूसरी चीज ये, एक तो आपने एक हम इसको इस रुख से देखना है। दूसरा रुख ये कि अगर हम जाओ हशम वाले हैं, हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, तो हमें इसराफ करने की इजाजत किसने दी है? अगर मैं एक नॉर्मल गाड़ी में अपना गुजारा कर सकता हूं, तो मुझे जरूरत है कि मैं लैंड क्रूजर या तो दूसरी जो है वो मर्सिडीज मंगवाऊं। मैं किसको दिखाना चाह रहे हो तुम? ठीक, ये इसराफ में आएगा, ये जाओ हशम में आएगा, ये प्रोटोकॉल में आएगा, जो आपके यहाँ जायज नहीं है। हाँ, अच्छी सवारी रखो, अच्छा हथियार रखो, अच्छा लिबास पहनो, ऐसा नहीं पहनो कि दूसरे की नजर पड़े, हसद की या जलन की नजर पड़े कि ये इतना कीमती कपड़ा, तुम्हें क्या जरूरत है कीमती? जो लोग दिल के अमीर होते हैं वो लिबास से अमीरी नहीं जाहिर करते हैं। वो दिल के अमीर होते हैं, वो सारे जमाने को पहले खिलाएंगे, फिर बाज़ लोग तो ऐसे हैं बड़े बड़े रईस लोग कि वो दूसरों को खिलाते हैं, फिर उनका जो बचता है वो खुद खाते हैं। परवरदिगार तेरी बारगाह में हम आजिज हैं। ये लोग पसंद है, दूसरे को खिलाया फिर बाद में खुद खाया, बल्कि बाज़ वक्त तो उनका बचा हुआ खाया, जबकि वो क्या कुछ नहीं खा सकते, क्या कुछ नहीं कर सकते। ये है सही मायनों में अमीर अल्लाह की नजर में। जी, मैं पूछना चाहूंगी, ये तो मुझे पता है कि हसद की 3 किस्में हैं, मगर वो क्या है उस पर जरा रोशनी डाल दें। देखिए, हसद जो है सबसे एक अहम बीमारी जो हसद की है, उसकी किस्में हसद करने की भी हैं और छुपाने की भी हैं। अगर हम उन किस्मों की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें वक्त चाहिए, उसकी किस्में बहुत है, उसके ऊपर कलाम है, मगर हसद एक अहम बीमारी है जिसको बुजुर्गों ने फरमाया है, सूफिया किराम ने फरमाया, कुरान सूफिया कुरान को पढ़ते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा ला अम्मारा, कि हसद जो है ये नफ्स अम्मारा की बीमारी का नाम है। देखिए, रमजान है, रमजान के अंदर शैतानों को जकड़ दिया गया है, मगर इंसान फिर भी गुनाह कर रहे हैं। क्यों? कि उनके अंदर का जो शैतान है वो आजाद है। उसी शैतान का नाम, ये इबलीस 2 हैं, शैतान 2 हैं, एक वो जो जकड़े हुए जहन्नम में बंद हैं, एक अंदर आजाद है। जो आजाद है इसी का नाम नफ्स अम्मारा है। असल में इसी को हसद कहते हैं। जब ये हसद करता है, आगे बढ़ता है, तो दिल पे अटैक करता है, फिर वो कहता है कि या अल्लाह इसकी नेमतें ज़ैल हो जाए, इसका ईमान ज़ैल हो जाए, इसकी जाओ हशमत ज़ैल हो जाए। वो जब ये करता है तो गुनाह में जाता है। बेशक हमारे वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन मुख्तसरन बता दें कि सबसे बड़ा हसद फिर क्या है? सबसे बड़ा हसद यही है कि किसी के इल्म को देख के हसद किया जाए कि ये अल्लाह, या अल्लाह इसको इल्म क्यों मिला है, या नबी से हसद किया जाए। सबसे बड़ा ईमान क्यों मिला है? जी बिल्कुल, ईमान क्यों मिला। पहला जो हसद है वो इब्लीस ने किया और वो नबी पर किया। तो नबी से हसद करना ये दुनिया का बहुत बड़ा जुल्म होता है, बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे तमाम देखने वालों ने सुना कि एक बहुत ही
दुखी वाकया जो है इस चीज जी, में आपने जो पूछा था तीन चीजें कौन सी हैं? जी मैं जरूर, मगर सिर्फ एक दुआ करवाना चाहूंगी। अच्छा। हमारे कमर जमान कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्ना के लिल्लाहि व वो इन्ना इलैहि चेयरमैन राजिऊन। पंजाब के, उनके बेटे की कल एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो गई, उसके दोस्त के भी, उसामा कायरा की। मैं चाहूंगी उस बच्चे के लिए दुआ और अल्लाह पहले उसके तो ये वालिदैन कि- को सब्र पहले जमील तो ये अता कि करे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और उनके अहले खाना से हम दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और ज़ाहिर है बहुत बड़ा गम है, एक बाप का अपने बेटे, जवान बेटे का लाशा उठाना बहुत बड़ा गम है। हम उनमें उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील भी अता करे और उनके बेटे को दर्जात उनके बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम आज अपनी इस ट्रांसमिशन की इख्तिताम पर जो है, ये इस सेगमेंट के इख्तिताम पर जो है, मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त करेंगे कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिए और कल इंशाअल्लाह ताला अगले टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे और ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा रब्बना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयित मिन्ना फ़अहिय्यिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यत मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या परवरदिगार आलम, या मालिकुल मौला, जो हमारे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के जवां साल बेटे कल वो शहीद हुए हैं एक हादसे में, परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह मरहूम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। मौला करीम उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। या रहमर राहिमीन मौला बिलखसूस उनकी वालदा और वालिद को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार आलम नकीरैन के सवाल जवाब आसान फरमा दे। अल्लाह मरहूम की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। मौला करीम उनकी कब्र पे अपने अनवार की बारिश अता फरमा दे। मौला करीम कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें पहचान अता फरमा। कल क़यामत के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उन्हें शफाअत नसीब फरमा। मौला करीम हौज़े कौसर के जाम नसीब फरमा। या परवरदिगार आलम सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम दरजात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह जितने गुजर गए हैं क़यामत तक फौत होंगे, मौला सब की मग़फ़िरत फरमा दे, सबके दरजात बुलंद फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा तौबतन क़ब्लल मौत, अल्लाहुम्मा राहतन इंदल मौत, मग़फ़िरतन व रहमतन व बअदल मौत, अल्लाहुम्मा रिज़्क़न हलालन तय्यबा, अल्लाहुम्मा रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मअदल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। करने रोजे का दीदार, करने रोजे का दीदार, मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। आप सब मिलकर मेरे साथ कह लीजिए, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने। कौन कौन जाना चाहता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सब जाना चाहते हैं। और फिर मिलकर क्या कहेंगे कि वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। शाह मदीना रहमत आलम नबियों के सुल्तान, शाह मदीना रहमत आलम नबियों के सुल्तान, देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार। मैं तो हूँ कब से तैयार, मैं तो
دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. مدینے خود نہیں جاتے میرے آقا بلاتے ہیں. مدینے خود نہیں جاتے میرے آقا بلاتے ہیں. مدینے خود نہیں جاتے میرے آقا بلاتے ہیں. خوش قسمت وہی جن کو میرے آقا بلاتے ہیں. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. اور مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال. مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال. ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال. ان کو تو معلوم ہے یارو سب کے دل کا حال. کہتے ہیں یہ دل کے تار, کہتے ہیں یہ دل کے تار, جس دن چاہیں گے سرکار. میں تو ہوں کب سے تیار, میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا. ہماری بہن ریما نعت نہیں پڑھتی ہیں, لیکن ان کی دل کی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں آپ کی طرف سے جو بہنیں بیٹھی ہیں سب کی طرف سے کہ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گی. اور مدینے جا کر کیا کہیں گے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. غلام مصطفیٰ بن کر میں رہ جاؤں مدینے میں. غلام مصطفیٰ بن کر میں مر جاؤں مدینے میں. اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جاؤں. بکنے طیبہ کے بازار میں مدینے جاؤں گا. بکنے طیبہ کے بازار میں مدینے جاؤں گا. اور مدینے کی طرف بڑی عجیب ہے کہ جب دل میں لگ جائے نا تو عجیب اداسی چھا جاتی ہے کہ دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام. دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام. میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام کہ مرنے سے پہلے ایک بار, مرنے سے پہلے ایک بار, جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے کہ مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا مجھ کو مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے. اور دیکھ کے مجھے آسی کو ان کو آ جائے گا پیار. نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار. لے کر جب عشقوں کے ہار, لے کر جب عشقوں کے ہار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار, وہ دن آئے گا
एक बार मैं मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाही कबूल करे सबके दिलों से ये दुआ कि हमें भी मदीने की हाज़री बार बार नसीब हो और वहाँ से झोलियाँ भर कर आएँ, और अल्लाह हर लम्हे हर सांस के साथ हमें तौफीक दे कि हम वो तमाम अमल करें जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाए। अच्छा जी, आज का हमारा सेगमेंट आप सबको मालूम है कि तिब्बे नबी की रोशनी में हम जानने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, मसले मसाइल के हवाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिगर के अमराज में मुब्तला लोगों का इलाज तिब्बे नबी की रोशनी में कैसे मुमकिन है। आगा अब्बास साहब हमारे आ चुके हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप करते हैं, बहुत ही नुस्खे सादा से मगर जज़ात से भरे हुए, क्योंकि जिनकी रोशनी में आप हमें ये नुस्खे बताते हैं उस पर तो एक लम्हे का भी डाउट हो ही नहीं सकता। आज का मेरा पहला जो सवाल है आपसे कि जिगर की बीमारी किन वजूहात की बिना पर होती है और इससे बचने की तदबीर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिगर के जो अमराज होते हैं उनकी एक नहीं कई वजूहात होती हैं, और सबसे पहली जो वजह है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। हदीस पाक में आता है, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चाहता है कि जिगर का मर्ज़ कभी ज़िंदगी में ना हो तो उसको चाहिए कि पानी हमेशा उबाल के पिए। नीम गरम हो, नीम गरम हो, पानी हमेशा उबाल के पिए, और जब भी पिए नीम गरम पिए। मतलब एक तो पूरा ठंडा कर देते हैं आप, पूरा भी ठंडा ना हो, हल्का कुनकुना पानी हो, नीम गरम पानी हो। और ख़ास तौर से रमज़ान के लिए अहकामात जारी किए मौला ने कि अफ्तार और सहर में नीम गरम पानी हर हाल में पीना चाहिए, बेइंतहा फ़ायदा। मैदे को तक़वियत मिलती है और जिगर पुरसुकून रहता है। जिगर में वरम और जिगर में ज़ख़म और जिगर में हरारत, तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। अच्छा, अब पानी को उबालने का मसला भी यह है कि पानी कैसे उबाला जाए। लोग क्या कहते हैं कि एल्युमिनियम के भगोने में पानी को उबालने का रख देते हैं, वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि एल्युमिनियम जब उसमें छूट के शामिल होता है तो वो सबसे पहले दिल का मर्ज़ पैदा करता है। एल्युमिनियम में पानी नहीं उबालना चाहिए, पानी उबालना चाहिए स्टील के भगोने में। और हमारे मुल्क के अलावा जो हमारे करीबी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, शीशे के पतीले आते हैं, शीशे के भगोने आते हैं, उसमें पानी उबालते हैं वो लोग। आपने देखा होगा, बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं, बहुत आँखों को बड़े भले लगते हैं। जी हाँ। तो पानी हमेशा या तो शीशे के बर्तन में उबालें या स्टील के भगोने में उबालें। पानी को तकरीबन 10-12 मिनट जोश दें। जब जोश देने के बाद जब वो हल्का उसको बंद कर दें, 10-12 मिनट, 10-12 मिनट, मतलब टोटल जो उसका उबाल का टाइम होगा, मतलब शुरू जो होगा 10 से 12 मिनट में, 12 मिनट में तकरीबन 2 बार वो जोश खा लेगा पानी। ठीक है। उसके बाद उसको हल्का सा ढक्कन खोल के रख दें और उसको अपने हिसाब से उसको ठंडा होने दें। ज़बरदस्ती उसको फ्रिज में रख के या वैसे ठंडा ना करें। जब हल्का कुनकुना हो उसको नोश करें पानी को। एक तो ये है। अच्छा, ये मुझे बताते जाएं थोड़े से, क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं कि ये जो टैप वाटर है, या आप उसकी बात करें या जो हम मिनरल वाटर की बोतलें खरीदते हैं उसको बॉयल करें, ये जरा थोड़ा प्लीज वजाहत कर मिनरल दीजिए। वाटर जो होता है उसमें पहले ही 4-5 केमिकल मिलाए जाते हैं, और वो पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में तो वो ज़मीन से खारा पानी, ये जो कड़वा पानी कहलाता है, खारा पानी होता है, उसको निकालते हैं, उसको मीठा करते हैं। वो मुज़ीर सेहत है, वो मुज़ीर सेहत होता है। और कुछ मिनरल वाटर ऐसा जो मीठा पानी होता है लेकिन उसमें केमिकल डाल के जरासीम वगैरह को ख़त्म कर देते हैं। मिनरल वाटर अच्छे भी हैं यहाँ पर और थोड़े से नुक्स वाले भी हैं, तो मिनरल वाटर भी देख के इस्तेमाल करें, लेकिन उसको नहीं बॉयल करना, उसको बॉयल नहीं करना, उसको बॉयल नहीं करना। प्यारे पाक नबी ने फरमाया कि पानी हमेशा उबाल के पिएं। अगर आपके घर में पानी आ रहा है और उसमें देख रहे हैं आपके कुछ नुक्स है, पानी गंदा, लेकिन उसको उबाल लें आप। तमाम जरासीम जो जानदार होते हैं, मौला ने उस वक्त फरमाया उसमें जानदार होते हैं जो तुम्हारी आंख नहीं देख सकती है। आज साइंस कहती है कि उसमें जानदार होते हैं, बारीक 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 तरह तरह के जानदार होते हैं जो तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। की हिकमत का क्या कहना। तो उसको उबालिए, उसके बाद उसको ठंडा कीजिए, हल्का कुनकुना कीजिए, उसको पीजिए। स्टील के भगोने में उबालें उसको, जिगर की बीमारी नहीं होगी। अच्छा, जिगर की बीमारी इसके अलावा बहुत ज्यादा वजूहात की बिना पर होती है। जी हाँ, ज्यादा मसाले जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल आप जवाब रोक लीजिए,
मैं लूँगी जी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, और इसमें हमारे साथ ऑडियंस भी आज शामिल होगी। बहुत शुक्रिया। ब्रेक में हम लोग गए, और ब्रेक के दौरान ही हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उफेरा, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जिगर की प्रॉब्लम्स के हवाले से। अभी आगा अब्बास साहब ने तिब्ब नबी की रोशनी में अपना नुस्खा बताया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिगर, हमारा जिगर क्या काम करता है, और अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उससे हमें कैसे अपना बचाव करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल कह रही माँ, क्योंकि शायद हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, बियोलॉजी पढ़ी होती है, हमने पूरा फिजियोलॉजी पढ़ी होती है, तो हमें पता होता है एक एक चीज़ के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ाइयाँ नहीं की होती, कुछ और पढ़ाइयाँ की होती है। बहुत सारे लोग लिटरेट नहीं होते, तो उनको दरअसल पता नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता इस चीज़ में, इस ऑर्गन में ख़राबी हो जाए तो फिर कितनी मुश्किलात का सामना होता है। जिगर एक तरह से समझ लें कि घर की माँ होती है, कि जिसके बगैर बॉडी की माँ है। बिल्कुल, आपकी बॉडी की माँ है, कि जिसके बगैर घर चलना नामुमकिन है। जब हमारा जिगर, जो भी हम चीज़ खाते हैं, अब हमने एक सेब खाया तो उसमें क्या मिनरल्स हैं, क्या विटामिन्स हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब की एब्जॉर्प्शन हमारा जो एक बाइल प्रोडक्ट होता है वो उसको प्रोडक्ट कर रहा होता है, उसको निकाल रहा होता है। उसके ज़रिए हम जितने भी फैट्स ले रहे होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, उसको तोड़कर हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। वो जो बाइल प्रोडक्शन होती है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करती है, हमारी इंटेस्टाइन्स में आके एब्जॉर्प्शन दे रही होती है। तो बेसिकली हम जो भी खा रहे हैं उससे फ़ायदा हमें उस वक्त पहुंचता है जब हमारा जिगर प्रॉपर काम कर रहा है। अगर हमारा एक तरह से हमारी बॉडी की चेक पोस्ट है, कि अगर हमारा जिगर काम नहीं कर रहा है तो हम जो भी खा रहे हैं वो फ़ायदेमंद नहीं। अब्बू खाना घर में तो लेकर आ गए, लेकिन अम्मी पका के देंगी तो हमारे अंदर तक पहुंचेगा, हम खाएंगे। बिल्कुल वही सेम इसका है। और अगर इसको कुछ हो जाए, या ये किसी बीमारी का शिकार हो जाए, या प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो फिर हमें ताकत, हमें सेहत, हमारी जिस्म को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो सब मिलना रुक जाते हैं। हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसकी कुछ निशानियाँ होती हैं कि आपको कमज़ोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे हेपेटाइटिस सी की तरफ अगर हम जा रहे होते हैं तो हमारी आंखें पीली होनी शुरू हो जाती है। फ़ौरन सी में तो एक्सट्रीम स्टेज होती है ना, ए में मुझे लगता है कि आंखें पीली होना शुरू होती है। जॉन्डिस वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो हल्का हल्का फिर चलता चले जाता है। अगर आप उसकी केयर नहीं करें तो हेपेटाइटिस सी फिर बहुत सीवियर चला जाता है। जॉन्डिस से हम आगे बढ़ते हैं तो हेपेटाइटिस सी पे जा रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी ख्याल हैं। इसमें यूरिन अगर येलो आना शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरन ख्याल करना चाहिए। अगर आपको भूख के लगने वक्त आपको कोई खुशबू खाने की आ रही है, आपको मतली आनी शुरू हो जाए, तो आपको फ़ौरन यू मस्ट हैव टू चेक अप फ्रॉम द डॉक्टर। फ़ौरन जाएं, आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। हम अगर अपनी सेहतमंद ग़िज़ा नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। बिल्कुल करेंगे। मैं आगा साहब आपकी तरफ आने से पहले चाहूँगी कि ऑडियंस में से किसी ने सवाल पूछना है तो बिल्कुल पूछना है, ताकि फिर वो एक ही बार जवाब दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। मेरा आगा साहब से ये सवाल था कि जो जिगर में जो जॉइंटिस हो जाता है उसके बारे में बताएं, क्योंकि मेरे बेटे के साथ ये हो चुका है अभी, क्योंकि उसे जॉइंटिस हुआ है अभी, तो लेकिन उसके जिगर में है। जी आगा भाई, जॉइंटिस का, यरकान का तिब्ब नबी में क्या इलाज है? देखिए, मैं बहुत आसान नुस्खा बताऊंगा, लेकिन बहुत मुस्तनद है और बहुत कारआमद है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इसकी वजूहात क्या होती हैं। कसरत से शराब खोरी इसकी वजह में बहुत बड़ी वजह है। कसरत से शराब खोरी जो लोग करते हैं उनका जिगर ख़राब हो जाता है, और कसरत से ये मसालेदार ग़िज़ाएँ खाने से भी जिगर ख़राब होता है। अगर भाई जो बच्चों में हो जाता है तो वो किस चीज़ की कसरत से? बच्चे जो मीठी अशिया खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट बहुत ज़्यादा उनको खिलाते हैं कि उनके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद नहीं है, हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी मौजूद है। तो बच्चों के अंदर जो ज़्यादातर होता है वो कसरत से जो चॉकलेट्स हम खिलाते हैं, मीठी चीज़ें खिलाते हैं, पेस्ट्रियाँ खिलाते हैं, उनको मीठी मीठी उससे होता है। अच्छा, शदीद गर्मी में जो लोग काम करते हैं उससे भी जिगर ख़राब हो जाता है। शदीद गर्मी में लोग बहुत से लोग काम करने के आदी होते हैं और अपनी केयर नहीं करते की वजह से। शदीद गर्मी की हालत में बहुत से लोग तो हब्स के अंदर बैठ के काम करते हैं ना। जी। पंखा नहीं चला सकते, वो जो काम है उनका वो हब्स में ही करना। पंखा चलाएंगे चीजें उड़ जाएंगी, बहुत से तरह के काम होते हैं। बिल्कुल।
تو اس کی یہ وجوہات ہوتی ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جگر انسانی جسم میں سب سے نازک ترین اعضا ہے, اور جگر کی جو حرارت اپنے اندر, جو اس کی اپنی حرارت ہے 38.4 ہے تقریباً, اتنی حرارت ہوتی ہے اس کے دل اندر. سے بھی زیادہ نازک ہے جگر. دل سے زیادہ نازک ہے, بہت زیادہ نازک ہوتا ہے. 38.4 یا 38.6 اس کی اپنی حرارت ہوتی ہے اندر, اتنا زیادہ حرارت رکھتا ہے. اندازہ کیجئے اگر ہم باہر کی جب ٹمپریچر لیتے ہیں تو کیا اثر پڑتا ہوگا جگر کے اوپر. اچھا, پھر ایک بات یہ جو انہوں نے بہن نے پوچھا سوال, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. بچوں کے حوالے سے ہیپیٹائٹس اے اور بی, میں اس کے لیے جواب دے رہا ہوں آپ کو. یرقان کے حوالے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یرقان کا مرض اگر ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے. مولا نے فرمایا کہ ایک کسی شیشے کے ظرف کے اوپر آپ لکھیں سورہ قدر زعفران سے. سورہ قدر کو شیشے کے ظرف پہ آپ لکھیں باوضو ہونے کے بعد. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں, اور باوضو ہونے کے بعد قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھ جائیں, اور بہتر ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں آرام سے, ہے. تو اس کے بعد آپ شیشے کے ظرف پہ یا مٹی چینی کی پلیٹ ہوتی ہے نا, اس پہ سورہ قدر آپ زعفران سے لکھیں, اور زعفران سے لکھنے کے بعد آپ اس کو بارش کے پانی سے, اگر آپ کے بہت سے لوگ اسٹور رکھتے ہیں بارش کا پانی, آپ نے دیکھا ہوگا اب تقریباً تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم چل گیا بارش کے پانی کے کیا فائدے ہیں اور کتنی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور بارش کا پانی بھی میں بتا دوں اس طرح سے اسٹور کرنا چاہیے کہ جو پہلے بارش ہو جائے تو اس کو 1 گھنٹے تک اس بارش کو ہونے دیں, یعنی کہ جتنے بھی اس میں بخارات ہوتے ہیں جو ناقص ہوتے ہیں, جو نقصان دہ ہوتے ہیں, وہ سب بیٹھ جاتے ہیں. جب بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جو بارش کا پانی آ رہا ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. اس کو آپ اسٹول کے اوپر یا اسی کے اوپر ایک بھگونا رکھیں بڑا سا, وہ ڈائریکٹ آئے گا. آپ زمین پہ رکھیں گے نا تو اس میں سے ٹپ مار کے باہر سے بھی پانی, گندا پانی آ جائے.